Hello friends, we have started with our 15th chapter. In that we studied about the Mughal rule in India. After that we studied the reform in revenue system. Like revenue system कितना change हुआ, like proper land दी जाती थी. Land was classified into 4 types, that is fertile, infertile, irrigated, dry crop. और उस land के basis पे you are supposed to pay the taxes. और वो सारा taxes जो भी आपको पे करना है, it was in a proper documented form, and that tax was applicable for the span of 10 years and all. और अगर famine flood कुछ भी आता था तो थोड़ा सा कंसेशन दिया जाता था आपको. देन वी मूव टूवर्ड द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. अपन ये थोड़ा सा पार्ट देखा था. लाइक वी सॉ दैट बाबा कि जो ताजमहल वगैरह बना है वो कितना फाइन आर्ट है. लाइक पूरा मार्बल पे उन्होंने पेंटिंग किया है, कार्विंग किया है. वी ऑल स्टडी अबाउट दैट. और फिर उस वक्त पेंटिंग में क्या किया जाता था, पेंट इन दैट पेंटिंग देयर वर लाइक पोर्ट्री ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमन फिगर्स एंड नेचुरल सीनरीज. पेंटिंग में ये सब दिखाया जाता था. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द आर्ट ऑफ म्यूजिक रॉयल पैट्रोनेज. अभी मुगल पीरियड में क्या था, म्यूजिक को एक रॉयल पैट्रोनेज मिला था. पर्सियन, कश्मीरी और टर्किश म्यूजिशियन, इनको एक रॉयल पैट्रोनेज दिया जाता. मतलब इनको एक अच्छा सम्मान दिया जाता था. दे वर लाइक गुड पीपल. एक अच्छी म्यूजिशियन को उनको बोला जाता था. तानसेन was a great singer in the court of Akbar. Tansen is the great singer in the court of Akbar. During this period, the Hindustani music prospered. अब अकबर के टाइम पे क्या हुआ, हिंदुस्तानी म्यूजिक को भी एक नई राह मिली. During the period of Jahangir and Shahjahan, music was encouraged as well. During the period of Jahangir and Shahjahan, music भी encourage किया जाता था. Like people used to get motivated by the music. However, under Aurangzeb rule, art declined since he had banned all art form. अभी जब औरंगजेब आया तब क्या हुआ, पूरा आर्ट फॉर्म डिक्लाइन किया क्योंकि उसने आर्ट सब जगह बैन कर दिया था. By the way, during the period of Aurangzeb, the royal patronage to the art of painting was withdrawn. The artists were focused to seek patronage elsewhere under various rules in Rajasthan, Bundelkhand, Gujarat, and the province of Himalayan ranges. New local styles of painting emerged there, which are known as Rajasthani and Pahari painting. The Ragamala Baramasa painting depicts the different seasons in nature. The painter of Pahari style depicted various themes apart from daily life such as religious, history, etc. Later, various styles such as Basavli, Gandwali and Kangra emerged out of the Pahari style of painting. The influence of Persian style of architecture was more prominent till Akbar's period. अब the Persian style architecture जो था ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस था अकबर पीरियड में. In the later period, it evolved by observing Indian elements which came to be known as Indo-Islamic style of architecture. अभी later period में क्या हुआ, it started observing the Indian elements which came to be known as Indo-Islamic style of architecture. The architectural style during Suntalat period had great implement on strength and simplicity. अब जो architecture style था संतनत पीरियड में, वो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा strength थी and बहुत ज़्यादा simplicity थी. Like it used to give strong message in a simple way. But during the Mughal period, the focus shifted to aesthetic. But मुगल पीरियड में क्या हो गया, ये फोकस शिफ्ट हो गया. लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे सोफिस्टिकेटेड वगैरह से चालू हो गया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाबर, द काबुल बाग मॉस्क एट पानीपत एंड जामा मस्जिद एट शंभाल इन उत्तर प्रदेश वर बिल्ड इन पर्सियन स्टाइल. अब बाबर का जब पीरियड था तो जो
काबुल पाक मस्जिद है विच इज एट पानीपत, विच इज इन पानीपत, एंड जामा मस्जिद एंड संभाल इन उत्तर प्रदेश, दे वर बिल्ड इन द पर्सियन स्टाइल, वो पर्सियन स्टाइल में बांधे थे. द मेमोरियल बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह सुर एट शस्त्रराम बिहार इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. अभी जो मेमोरियल बिल्डिंग बनी है, मेमोरियल बिल्ड मतलब किसी की याद में अपन बनाते हैं ना, वो इट वॉज इन द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह सुर एट शास्त्राराम विच इज इन बिहार इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द पुरान किला वॉज बिल्ड बाय शेरशाह एट दिल्ली. जो पुरान किला है इट वॉज बिल्ड बाय शेरशाह एट दिल्ली. द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज सेटअप ड्यूरिंग अकबर पीरियड. अभी जो फतेहपुर सिकरी की जो सिटी है ना, it was set up by the Akbar period. Later, the buildings like Jama Masjid, बुलंद दरवाज़ा were built in फतेहपुर सिकरी. अब फतेहपुर सिकरी में क्या क्या बनाया, क्या क्या फेमस बिल्डिंग्स है, लाइक जामा मस्जिद इट इज़ फेमस इन फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाज़ा इट इज़ ऑल्सो फेमस इन द फतेहपुर सिकरी. अकबर built the important fort like आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट एंड अटक फोर्ट. अभी अकबर ने कहाँ पे फोर्ट बनाए हैं, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अलाहाबाद एंड अटक फोर्ट. द यूज ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल ह्यूज डोम्स आर्च वेर द साइलेंट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड. अभी उसने बहुत जगह पे रेड स्टोन यूज किए हैं, मार्बल यूज किए हैं, डोम्स बने बड़े बनाए हैं, आर्चेस, ये सारे क्या है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड. द मुगल एम्परर वेर नेचर लवर. अब जो मुगल एम्परर थे उस वक्त दे वर द नेचर लवर. दे क्रिएटेड ह्यूज गार्डन, अमंग देम द शालीमार गार्डन एट लाहौर, शालीमार गार्डन एंड निषद गार्डन इन कश्मीर आर पॉपुलर इवन टुडे. अब शालीमार गार्डन एक लाहौर में है और शालीमार गार्डन कश्मीर में भी एक है और निषद गार्डन भी कश्मीर में है, वो आज भी पॉपुलर है. हाँ, कश्मीर जाओगे तो शालीमार गार्डन देख सकते हो, इट्स वेरी नाइस और बहुत बड़ा है एंड इट्स वेरी गुड. इफ यू गेट अ चांस गो एंड विजिट. द पीरियड ऑफ शाहजहां वॉज द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. अब जो शाहजहां का पीरियड था ना, वो सबसे ग्लोरियस था, लाइक सबसे अच्छा पीरियड था फॉर द आर्किटेक्चर. द दीवाने आम, दीवाने खान इन रेड फोर्ट, जमाई मस्जिद, मोती मस्जिद वे बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी दीवाने आम, दीवाने खान इन रेड फोर्ट बने हुए हैं, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद दिस वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द ताजमहल ऑफ आगरा बिल्ड बाय हिम इज इनकम्पेरेबल एंड इनमोर्टेबल. अब जो ताजमहल बना है आगरा में वो क्या है, किसी से कंपेयर नहीं हो सकता और उसके जैसा दूसरा बन भी नहीं सकता. लेटर द मुगल आर्किटेक्चर बिगन टू डिक्लाइन. उसके बाद क्या हो गया, मुगल आर्किटेक्चर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एक्सीलेंट लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन पर्शियन लैंग्वेज. अब मुगल पीरियड में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट लिटरेचर करने चालू हो गया पर्शियन लैंग्वेज में. बाबर हिमसेल्फ न्यू पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज. अब बाबर जो था, he was the last sultan. He himself knew the Persian and Turkish language. His autobiography known as Babur Rama is well known. उसका जो ऑटोग्राफी था बाबर का, like Babur Nama is also well known. Another important text is Tariq-e-Masjid by Mirza Haidar, written under the period of Humayun Akbar, got many Sanskrit texts translated into Persian, which included Rajantaranjani, Leelavati, Ramayana, Mahabharata, Harivansham, and Panchatantras. Abul Fazl wrote the we'll study it here only. अभी उस वक्त क्या हुआ, ये मिर्ज़ा हैदर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हुमायूं. अकबर ने क्या किया, बहुत से संस्कृत टेक्स्ट है ना, ये ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज, राइट. उसके अंदर क्या क्या था, रामायण, महाभारत, लीलावती, हरिवमन एक्सेट्रा, ये बहुत से बुक उसने संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. अबुल फजल wrote the famous Akbarnama
एंड अनी-ई-अकबरी। अभी अबुल फजल इसने क्या किया, उसने ही रॉट द फेमस अकबरनामा एंड आईनी-अकबरी। दारा सुकून, द सन ऑफ शाहजहां was a Sanskrit scholar. अब दारा सुकून, he was the son of शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? दारा। He was a Sanskrit scholar. He translated text of several Upanishad texts in Persian language from Sanskrit. उसने क्या किया? उसने he translated the text of several Upanishad texts in Persian language from Sanskrit. संस्कृत में उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड नंबर ऑफ बायोग्राफिक हिस्टोरिकल टेक्स्ट वर रिटन। अब ड्यूरिंग मुगल पीरियड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बायोग्राफी हिस्टोरिकल टेक्स्ट सब लिखे गए थे। अमंग देम खलीफे खान, तहरीक ए खलीफा खान इज वेल नोन। अमंग देम खाफी खान, तहरीक ए आई खलीफाना इज वेल नोन। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड a number of literacy works of high quality were created in local North Indian dialects। अब मुगल पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे हाई क्वालिटी के लिटरेसी वर्क किए थे। टू मेंशन अ फ्यू, रामचरितमानस written by Goswami Tulsidas, the composition of Surdas and Mirabai, Padmavat composed by Malik Muhammad Ghazi, दोहरा एंड सेंट कबीर। अभी दोहा कबीर ये सब उस वक्त रिटर्न गए थे। ऑफ कर दो। ट्रेड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। Moving towards the next point, that is the trade, industry and social life. During the Mughal period, the transformation of goods within the empire had become speedy. अभी मुगल पीरियड के वक्त क्या हो गया, अब मुगल पीरियड के वक्त क्या हो गया, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन द एम्पायर हैड बिकम स्पीडी। ट्रांसपोर्टेशन का वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। न्यू हाईवेज वर बिल्ड फॉर इंटरनल ट्रेड, हाईवेज बनाए थे फॉर इंटरनल ट्रेड के लिए, नए नए हाईवेज बनाए थे। हाईवेज वर बिल्ड फ्रॉम आगरा टू काबुल, खंडारा, खम्बायर, बुरहानपुर एंड बंगाल। हाईवेज कहाँ से कहाँ तक बनाए थे? हाईवेज वर बिल्ड फ्रॉम आगरा टू काबुल, खंडारा, खम्बाटा, बुरहानपुर एंड बंगाल। The foreign trade via sea route was mainly carried out from the ports on west coast such as Khambayar, Bharuch, Surat, Dahol and Calicut। अब जो फॉरेन ट्रेड था जो वाया सी रूट चलता था, इट यूज टू गो फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, दैट इज फ्रॉम खम्बाटा, भरूच, सूरत, दाहोद एंड कैलिकट। द इंडियन मर्चेंट्स traded with merchants from Arabic, Islam, Iran, China, Armenia and some countries of European continent। जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने कौन से मर्चेंट के साथ ट्रेड किया? दे स्टार्टेड ट्रेड विथ मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, ईरान, चाइना, अर्मिया, अदर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। सिल्क, कारपेट, इंडिगो, लेदर आइटम, शुगर, जिंजर, एसोफोथिया, precious stones and many such items were exported to foreign countries from India। अभी देखो अपन क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, वी एक्सपोर्ट लाइक सिल्क, कारपेट, इंडिगो, लेदर आइटम, शुगर, जिंजर, एसोफोथिया मतलब हींग, अपन जो खाने में हींग यूज करते हैं ना, दैट इज नथिंग बट द एसोफोथिया, दैट इज हींग, प्रेशियस स्टोन and many such items were exported to foreign countries from India। ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे from India। The goods imported to India include gold, silver, horses, China silk, etc। अपन क्या क्या इंपोर्ट करते थे? गोल्ड, सिल्वर, हॉर्स, चाइना सिल्क, etc। During the Mughal period, the Indian textile industry flourished। अब मुगल पीरियड के वक्त क्या हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी। इंडियन कॉटन क्लोथ्स वेर इन ग्रेट डिमांड इन द रीजन ऑफ अरेबिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इजिप्ट, म्यांमार, मलेक्का एक्सेट्रा। अब क्या हो गया? इंडियन में जो कॉटन क्लोथ्स थे, अब क्या हुआ, अपने
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी। क्यों बढ़ी? तो इतना ज़्यादा उनको डिमांड था, और इंडियन क्लोथ्स की डिमांड वेरी ग्रेट डिमांड इन अदर कंट्रीज, लाइक अरबिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इजिप्ट, म्यांमार, मलेका एक्सेट्रा। द डाई ऑफ फॉर टेक्सटाइल वेर मेड एट आगरा। टेक्सटाइल जो कपड़े डाई करते थे अपन, ये कपड़े सारे ड्राई कहाँ पे होते थे? इट वेर इन द आगरा। कलर्स वेर मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंडिगो, टर्मरिक, लैक, कुसुम्बा एक्सेट्रा। अभी कलर्स अपने कैसे बनते थे? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंडिगो, हल्दी, लैक, लैक से मतलब ब्लैक कलर, समथिंग ब्लैक कलर, कुसुम्बा लाइक ड्राई फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर एक्सेट्रा। Weapons and farming equipment were the main product of casting industry. Weapons and farming equipments, they were the product of casting industry. The copper and brass vessels were in demand on large scale. अब कॉपर के और ब्रास के वेसल्स अपन बोलते ना, आज बनते तांबेचे भांडे वगैरह, तो उस वक्त भी कॉपर एंड ब्रास के वेसल्स उस वक्त भी बहुत डिमांड थे। The province of Bihar was famous for paper production. अब province of Bihar क्या था? It was famous for the paper production. Paper was produced from silk. अब पेपर उस वक्त कैसे बनता था? सिल्क से बनता था। हाँ, पेपर, बिहार वॉज फेमस फॉर पेपर प्रोडक्शन, और पेपर किससे बनता था? इट वॉज मेड फ्रॉम सिल्क। सियालकोट वॉज फेमस फॉर वाइट पेपर। अब सियालकोट में कौन सा वाइट पेपर फेमस था? सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्शन वेर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। अब सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्शन, इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेड इन विलेजेस। अब मुगल पीरियड के वक्त क्या था? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेड इन विलेजेस। एवरी विलेज वॉज सेल्फ सफिशिएंट। हर कोई विलेज क्या था? सेल्फ सफिशिएंट था। द लॉ एंड ऑर्डर वॉज मैनेज्ड एंड द डेली नीड्स वर मेट एट द विलेज लेवल। वहाँ पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हुआ, हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट था, और रोज़मर्रा की चीज़ें आराम से मिलती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड there were no major changes in the social organization which was based on caste system. अभी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, everything was based on caste system. During the Mughal period, the Purdha system was rooted in the elite class of both Muslim and Hindu community. अब मुगल पीरियड में क्या, जब पर्दा सिस्टम था ना, पर्दा सिस्टम जो था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में था। The education system of Sultanate period had continued till the rule of Akbar. जब एजुकेशन सिस्टम क्या था, वो वैसे का वैसे ही था अकबर पीरियड में भी। However, अकबर मेड इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इन दिस सिस्टम। अकबर ने क्या किया? बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाया इन दिस सिस्टम में। Along with the education of Islamic religion, he also included new subject in the syllabus such as Indian philosophy, agriculture, पॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब पहले क्या था? सिर्फ इस्लामिक रिलीजन के बारे में एजुकेशन दिया जाता था। अब एजुकेशन में नए सब्जेक्ट भी आगे जाते, इंडियन फिलोसॉफी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अ नंबर ऑफ मद्रासस वेर एस्टेब्लिश एट संभाल। अब बहुत से मद्रासेस क्या है? दे केम इन द संभाल पीरियड, अहमदाबाद एक्सेट्रा। इन साउथ इंडियन सिटीज like Ahmednagar, Gulbarga, Burhanpur, Bijapur, Golconda and Hyderabad had become a famous for learning center. अब famous learning center उस वक्त क्या क्या थे? अहमदनगर, गुलबर्गा, बुरहानपुर, बीजापुर, हैदराबाद, ये सारे famous learning center थे। There was a madrasa established at Ahmednagar by Saint Tahir. अभी Saint Tahir established madrasa at Ahmednagar. The libraries in madrasas used to have a special staff appointed for its maintenance. अभी मद्रासास को क्या किया? लाइब्रेरी जो थी उनके लिए उन्होंने स्पेशल स्टाफ अपॉइंट किया था ताकि वो मेंटेन कर सके लाइब्रेरी। आज अपने पास भी कॉलेजेस में क्या है, अपन देखते हैं ना, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन वगैरह रहता है, उसको भी वैसे ही था। नाउ द लास्ट पॉइंट इज मुगल एम्परर एंड डेक्कन। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाबर एंड हुमायून, बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्परर हैड नो एक्सटेंड बियॉन्ड नॉर्थ इंडिया। अब बहादुर और हुमायूं के वक्त क्या था?
बाउंड्रीज क्या है, नॉर्थ इंडिया तक की सीमित थे। द मेन रूलिंग पावर टू साउथ ऑफ रिवर नर्मदा वेर सुल्तान ऑफ खानदेश, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। अकबर लेड अ कैंपेन अगेंस्ट निजाम शाही। अब बहादुर एंड हुमायूं, उनका बॉर्डर सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही था। हाँ, अभी साउथ में कौन था, साउथ में वगैरह साउथ ऑफ खानदेश था, निज़ाम ऑफ अहमदनगर था, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, ये सब थे। अकबर ने क्या किया, निज़ाम शाही के अगेंस्ट कैंपेन छेड़ लिया। इन 1595 CE अकबर सीज द फोर्ट ऑफ अहमदनगर। अब अकबर ने क्या किया, अहमदनगर का फोर्ट ले लिया। ड्यूरिंग दैट टाइम चांद सुल्तानत, द डॉटर ऑफ निज़ाम शाही, सक्सेसफुली रेजिस्टेड द अटैक with courage and intelligent strategy. अब सी, चांद सुल्ताना, शी वॉज द डॉटर ऑफ निज़ाम शाही। निज़ाम शाही की बेटी थी वो, उसने सक्सेसफुली अटैक को रेजिस्ट किया विथ हर करेज एंड इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी। उसने ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाई विथ हर, उसने प्रॉपर इंटेलिजेंस से, अपने बहादुर से अच्छे से वॉर लीड किया, अटैक जो उसने रेजिस्ट किया। आफ्टर हर डेथ द मुगल कॉन्कर्ड अहमदनगर। अब उसकी डेथ हो गई, अब अकबर ने फोर्ट ले लिया था, अहमदनगर का फोर्ट तो ले लिया था, बट बाकी सब चीज़ के लिए इसने चांद सुल्तान ने क्या किया, बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया। बट उसकी डेथ के बाद क्या हो गया, अकबर ने पूरा अहमदनगर कॉन्कर कर लिया। अकबर पर्सनली केम डाउन टू साउथ एंड डिवाइडेड द कॉन्कर्ड प्रोविंसेस इनटू 3 सूबा, नेमली अहमदनगर, वरद एंड खानदेश। अब अकबर क्या हो गया, अकबर अभी साउथ में आए और उसने वहाँ के प्रोविंसेस डिवाइड कर दिए, दैट इज नेम एज अहमदनगर, वर्धा एंड खानदेश। वाइल अकबर वॉज एंगेज्ड इन द सदर्न कैंपेन, प्रिंस सलीम रिबेल अगेंस्ट हिम एंड अकबर हैड टू विंड अप हिज कैंपेन हेजिटेटली। अभी जब अकबर साउथ के कैंपेन में गया था और साउथ का सारा लेने में, सब करने में एंगेज था, तब प्रिंस सलीम उसने क्या किया, ही वेंट अगेंस्ट अकबर and Akbar had no other choice but to quickly wind up the campaign and come back. During the period of Shahjahan, the Nizam Shahi kingdom declined. अभी during the अब शाहजहां के वक्त क्या हो गया, निज़ाम शाही kingdom started declining. However, the Adil Shahi and Qutub Shahi kingdom managed to survive. But उसी वक्त आदिल शाही and Qutub Shahi kingdom, what they did, they tried to manage. Later, औरंगज़ेब वॉज सक्सेसफुल इन अपरूटिंग देम कम्प्लीटली। बट जब औरंगज़ेब आया तो उसने आदिल शाही और कुतुब शाही किंगडम इनको भी पूरा ख़त्म कर दिया। द मराठा पावर इन द डेक्कन पुट अप अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू औरंगज़ेब एडवेंट। जो मराठा पावर थे, दे स्ट्रॉन्गली वेंट अगेंस्ट द औरंगज़ेब एंड दे स्ट्रॉन्गली फॉट अगेंस्ट द औरंगज़ेब। वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्ट इन द नेक्स्ट लेसन। अब इसके बारे में अपन इसका नेक्स्ट लेसन में लर्न करेंगे। Sorry, there was some issue with my PPT in this chapter. I'm extremely sorry for that. So in next lecture we will be starting our last chapter, that is the Swaraja. If you have any doubt, just mail me on my mail ID. Thank you.